morning students. Today we are going to start exercise 9.2. Exercise 9.2. Question number 1. Find the sum of odd integers from 1 to 2001. 1 से लेकर के 2001 तक के नंबर्स का मुझे सम फाइंड आउट करना है. देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन 1, 2, 3 ये तो नेचुरल नंबर हो गए. मुझे ओड नंबर बताने हैं. कौन से बताने हैं? ओड. तो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन अप टू 2001. मुझे इनका सम बताना है. You know what is the formula of Sn? Sn formula is n by 2 bracket a plus l. One formula is this and second formula is n by 2 2a plus n minus 1 into d. When last term is given in this question in any sequence series, you have used this formula Sn is equal to n by 2 into a plus l. When last term is not given, the sum of n formula is n by 2 2a plus n minus 1 into d. Now these formulas we used in this question. So now in this question, first term is a and difference is 3 minus 1 is 2. Difference is 2. Second term minus first term. अब first you have find n. कितनी terms है इसके अंदर? तो लास्ट टर्म को हम nth टर्म मान लेते हैं. nth टर्म is 2001 and what the formula of last term a plus n minus 1 into d is equal to 2001. Here value of a is 1 plus n minus 1 d is 2 is equal to 2001. Now students n minus 1 into 2 is equal to 2001. Taking one right hand side minus 1, then n minus 1 into 2 is 2000. So n minus 1 is equal to 2000 divided by 2, that is 1000. Now n minus 1 is equal to 1000. तो n की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 1001. Here is n is 1001. Now you have find Sn. तो S 1001 is 1001 divided by 2 a plus l, but a is 1, l is 2001. First term and last term. Now friends, 1001 divided by 2, that is 2002. कैंसिल करेंगे बेटे 1001 पे और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1002001. that is your answer. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, क्लास 10th के जैसा ही था. Pause the video and note down this question. Now I am taking next question, question 3rd. In an AP, first term is 2. First term is 2 यानी a is equal to 2. And sum of first 5 terms यानी S5, sum of 5 terms is 1/4 of the sum of next 5 terms. Next 5 terms means S10 minus S5. First 5 terms का sum 1/4 होगा next 5 terms. Next 5 कौन सी होंगी? S10 minus S5. Now students cross multiplication 4S5 is equal to S10 minus S5. Now S5 को इधर ले आएंगे. 4S5 plus S5 is equal to S10. It is 5S5 is equal to S10. Clear? Now 5S5 formula is S5 5 by 2 bracket 2a plus 4d. S10 का formula 10 by 2 bracket 2a plus 9d. 2 5 जा 10 और इस 5 से 5 भी कैंसिल हो गया. नेक्स्ट टाइम में देखेंगे 5 by 2 2 कॉमन निकल रहा है. a plus 2d is equal to यहाँ पर 2a plus 9d. इस 2 से 2 कैंसिल हो गया. क्रॉस ब्रैकेट खोलेंगे 5a plus 10d is equal to 2a plus 9d. Now 5
3a is equal to minus d and a, but the value of a is 2, तो 3 to the 6, तो d की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 6, d की वैल्यू क्या आएगी माइनस 6। आपके फिर लास्ट में क्या प्रूव करना था 28 टर्म्स, यानी t20 आपको प्रूव करना है, कितना आना चाहिए -1 2, ये आपको प्रूव भी करके दिखाना है। तो t20 का फार्मूला a प्लस 19d, बट द वैल्यू ऑफ a 2, d की वैल्यू क्या है बेटे आपके पास -6, 19 6 114 और माइनस करेंगे तो 112, यही आपको प्रूव करना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट्स। पोज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इस टर्म इस एपी सीरीज है, इसके अंदर कितने टर्म्स होने चाहिए, तो गिव द सम इज -25, तो इट मींस Sn गिवन आपके पास -25। सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, Sn गिवन है -25 एंड वी नो दैट द Sn फार्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 into d is equal to -25. Got it away? n/2 a. What the value of a? A is -6 plus n minus 1 और d डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना हुआ बेटे 12 से ले लिया, -11 plus 12 that is 1/2, d की वैल्यू आपने 1/2 लिख दी is equal to -25। नेक्स्ट लाइन n/2, ये एलसीएम लिया -12 प्लस n minus 1 divided by 2 is equal to -25। One more step students, taking 2 LCM -24 plus n minus 1 is equal to -25, तो n याद रहेगा n minus 25 divided by 4 is equal to -25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n square minus 25n is equal to -100, n square minus 25n plus 100 is equal to 0। राइट स्टूडेंट्स, आप फैक्टर करेंगे n square minus 20n minus 5n plus 100 is equal to 0, n कॉमन, n minus 20 minus 5 कॉमन, n minus 20 is equal to 0, तो एक फैक्टर n minus 20 बन गया बेटे, एक n minus 5 बन गया, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 20 और n की वैल्यू यहां पर भी कितनी आ गई 5, दो वैल्यू आ गई, दोनों पॉजिटिव आ गई। अब हम किसको रिजेक्ट करें और किसको रखें वो चेक करना आपको। n की वैल्यू 2 आ गई आपके पास, n की वैल्यू 20 आ गई और n की वैल्यू 5 आ गई है, आपको n की कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं, तो आप दोनों चेक करके देख लो क्या दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। राइट स्टूडेंट्स, clear students? Pause the video and note down this question. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन एन एपी इफ द pth term is 1/q, pth term is equal to 1/q and qth term is equal to 1/p, तो प्रूव ये करके दिखाना है। स्टूडेंट्स सॉल्यूशन देखिए इसका ध्यान से, आपके पास गिवन क्या क्या है, pth टर्म 1/q, qth टर्म 1/p, तो pth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a plus p minus 1 into d is equal to 1/q, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट। qth टर्म का फॉर्मूला a plus q minus 1 into d is equal to 1/p, ये मेरी इक्वेशन सेकंड। अंडरस्टूड? सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, p minus 1 minus q plus 1 d is equal to 1/q minus 1/p। नेक्स्ट लाइन 1 से 1 कैंसिल हो गया, p minus q d is equal to p minus q divided by pq, p minus q से p minus q कैंसिल हो गया, d की वैल्यू आ गई 1/pq। अब d की वैल्यू किसी में पुट कर दो बेटे, पुट
putting the value of d in equation फर्स्ट में पुट कर दिया। फर्स्ट क्या आपके पास a प्लस p माइनस 1 d की वैल्यू है 1 बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। नेक्स्ट a प्लस बड़ी तरह ध्यान देंगे भाई p बाई पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। p से p कैंसिल हो गया a प्लस 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू, ये कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1 बाई पी क्यू, d की भी आ गई और a की भी आ गई। अब मुझे ये निकालना है एस पी क्यू, वी नो दैट एसएन फार्मूला, तो पी क्यू बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। भाई एसएन वाले फार्मूले में क्या था n बाई 2, n की जगह क्या है पी क्यू लगा दिया मैंने। नेक्स्ट लाइन यानी एस ऑफ पी क्यू मेरे को फाइंड आउट करना था, ये प्रूव करके दिखाना है। पी क्यू डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू क्या आपके पास 1 बाई पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू। नेक्स्ट लाइन पी क्यू डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा बेटे 2 बाई पी क्यू और ये क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू। तो नेक्स्ट लाइन में इनको एलसीएम लेंगे तो बचेगा आपके पास पी क्यू प्लस 1 बाई पी क्यू, तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया तो पी क्यू प्लस 1 बाई 2, यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। pth टर्म गिवन है 1 बाई क्यू के, तो pth टर्म t p इक्वल टू 1 बाई क्यू लिख दिया, qth टर्म 1 बाई p के इक्वल है तो qth टर्म दे दिया। pth टर्म का फार्मूला a प्लस p माइनस 1 इनटू d, qth टर्म का फार्मूला a प्लस q माइनस 1 इनटू d इज इक्वल टू 1 बाई p। सोल्व कर दिया बेटे मैंने, d की वैल्यू निकाल दी, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके a की वैल्यू निकाल दी। फिर मैंने sn का फार्मूला अप्लाई कर दिया, sn की n की जगह मैंने क्या रखा है pq और हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा उम्मीद है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द, जल्दी नोट करें भाई, इफ द sum of a certain number, if the sum of its certain number of terms of an AP is 25, 22, 19, 22, 19 up to and so on is 116, find last term। आपको लास्ट टर्म भी फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में ही सारी चीजें गिवन हैं और आप फटाफट इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। इनका सम गिवन आपके पास यानी एसएन गिवन है, एसएन गिवन है बेटे 116। एसएन का फार्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटे 11 10th क्लास का टॉपिक है इसलिए बहुत आसान लगेगा आपको, जल्दी जल्दी आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 10th क्लास में बहुत अच्छी तरह से आपने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ था। a की वैल्यू 25 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है माइनस 3 इज इक्वल टू 116। आफ्टर दैट n बाई 2 25 टू द 50, भाई ये हो जाएगा माइनस 3n और प्लस 3 इज इक्वल टू 116। नाउ स्टूडेंट्स n बाई 2 ये हो गया बेटे 53 माइनस 3n इज इक्वल टू 116, तो 53n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटे 232। नेक्स्ट लाइन इसको इधर ले जाएंगे 3n स्क्वायर माइनस 53n और प्लस 232 इज इक्वल टू 0। अब 3 टू द 6, 3 टू द 9, 3 टू द 6 ऐसे फैक्टर हमने आपको इस क्वेश्चन में बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 696 आए और ऐड करें तो हमारा आना चाहिए क्या 53, क्या आना चाहिए बेटे 53। तो इसके फैक्टर करेंगे हम यहाँ पर, बॉडी तरफ ध्यान देंगे सभी। 2 3 2 से जाएगा 1 116
2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 29। तो आपके फैक्टर बन गए बेटे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24n, 24n minus 20n plus 2 3 2 is equal to 0। अब 3n कॉमन निकल गया, n minus 24 minus 20n कॉमन, 29 कॉमन, n minus 24 is equal to 0। सॉरी 8 आएगा भाई, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। तो एक फैक्टर आपका क्या बन गया n minus 8, सेकंड फैक्टर बन गया बेटे 3n minus 21 is equal to 0। यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी 8, n की वैल्यू क्या आएगी 29/3, n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होती, तो फ्रैक्शन में नहीं होती तो ये क्या हो जाती है रिजेक्ट। तो n की वैल्यू क्या मानी गई 8। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर, इस जो सीरीज गिवन है इसके अंदर 8, इस सीक्वेंस के अंदर 8 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं 8, और मुझे लास्ट निकालनी है यानी P8 निकालना है। P8 का फार्मूला क्या होगा a plus 7d। a what is the value of a is 25 plus 7d की वैल्यू है -3, तो 25 minus 21, तो ये बच गया आपके पास 4। दैट इज योर आंसर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। Clear students? Pause the video and note down this question. Next question ले रहा हूँ student, question number 8. If the sum of n terms, student बॉडी तरफ ध्यान देना, sum of n terms कहा गया है कितनी बेटे Pn plus Qn square। ये sum of n terms है। आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस, यानी d निकालना है। d निकालने के लिए मेरे पास टर्म पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो आपकी d निकलेगी। तो सो स्टूडेंट्स देखिए, पहले मैं यहां पर पुट n = 1 कर रहा हूं। n की जगह 1 पुट किया तो s1 हुआ, यानी p plus q हुआ। तो ये s1 को मैं t1 भी बोल सकता हूं, यानी फर्स्ट टर्म का सम। t1 यानी फर्स्ट टर्म, s1 मींस फर्स्ट टर्म का सम। नाउ पुट n = 2। n की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूं, बोली तरफ ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। s2 = क्या होगा 2p plus 4q होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4q, राइट। अब s2, अरे ध्यान से देखो ना भाई, s2 का मतलब 2 टर्म्स का सम, इट मींस t1 plus t2। स्टूडेंट ध्यान देंगे, t1 plus t2 की वैल्यू किसके बराबर है 2p plus 4q के। अब t1 की वैल्यू गिवन है तो मैं यहां लिख देता हूं p plus q plus t2 = 2p plus 4q। तो यहां से t2 की वैल्यू निकल आएगी बेटे p plus 3q। ये t2 की वैल्यू निकलेगी। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। मुझे क्या निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस तो सभी जानते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी होती है। सेकंड टर्म क्या है आपके पास p plus 3q, माइनस करना है क्या फर्स्ट टर्म p plus q। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। क्या होते हैं साइन चेंज। तो p से p कैंसिल हो गया, 3q में से 1q गया तो क्या रह गया 2q। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ डिफरेंस निकालना था, तो डिफरेंस ऐसे फाइंड आउट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? पोस्ट द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सम ऑफ n टर्म्स, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 बुक में। The sum of n terms of 2AP, 2AP है इसके अंदर। तो 2AP हैं तो दो ही फर्स्ट टर्म होंगी। फर्स्ट टर्म की बात करें, एक AP की हमने A1 मान ली और दूसरी की A2 मान ली। ऐसे डिफरेंस की यदि हम बात करें, फर्स्ट यानी D1 मान ली और ये D2 मान ली। क्लियर? क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स आर इन द रेशियो में दे रखी है। तो सम ऑफ n टर्म्स की निकालेंगे तो a1 यानी n/2 ब्रैकेट 2a1 plus n minus 1 into d1, that is the formula of n terms, sum of n terms. Similarly n/2 2a2 plus n minus 1 into d2। स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पर a1 is represented, A1 is denoted by first term of the first AP, A2 is the first term of the second AP. Similarly, D1 is that common difference of
first AP and D2 is the common difference of second AP is equal to the 5n plus 4 divided by 9n plus 6. क्लियर स्टूडेंट्स, n by 2 से n by 2 कैंसिल हो गया और क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म्स. 18 टर्म की रेशियो निकालना है स्टूडेंट्स. T18 निकालना है मेरे को. T18 by T18. T18 का फार्मूला A1 plus 17 D1 और दूसरी वाली का A2 plus 17 D2. मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है. तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 2 कॉमन निकल रहा है इसमें से, लेफ्ट साइड ऊपर से न्यूमरेटर से 2 जब कॉमन निकलेगा तो A1 plus n minus 1 by 2, यहां पर क्या हो जाएगा D1 डिवाइड बाई, नीचे से भी 2 कॉमन निकलेगा A2 plus n minus 1 डिवाइड बाई 2 और ये हो गया D2 इज इक्वल टू 5n plus 4 upon 9n plus 6. 2 से 2 कैंसिल हो गया. अब देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, यहां पर क्या लिखा हुआ है A1 plus 17 D1 लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है A1 plus 17 D1. तो यहां पर मुझे 17 चाहिए. A1 तो है, D1 भी है, लेकिन यहां पर 17 चाहिए इसके रिप्लेस पर. तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, पुट करूंगा मैं क्या n minus 1 by 2 is equal to 17. नाउ स्टूडेंट्स n minus 1 is equal to 34 and n is equal to 33. n की वैल्यू सॉरी 35. n की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 35. तो मैं इंस्टेड ऑफ n we put the value of n 35. तो स्टूडेंट्स a1 plus ये तो 17 d1 हो जाएगा और ये a2 plus 17 d2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 35 plus 4 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 35 plus 6. ये हो जाएगा बेटे 5 3 जा 15 और 2 17 plus 4 डिवाइड बाय 9 5 जा 35 45 9 3 जा 27 और 4 बेटे 31 plus 6. तो नेक्स्ट लाइन में 179 अपॉन 321 ये आपका आंसर होगा. तो 18 टर्म की जो रेशियो होगी वो किसके इक्वल होगी 179 अपॉन 321. ये चीज क्या बनी, ये 18 टर्म बनी. नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी. 18 टर्म की जो रेशियो आई वो आई 179 रेशियो 321. ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा. क्लियर स्टूडेंट्स, pause the video and note down this question. It is the very most important question. So students, now I am taking question number 11. Sum of first pair terms given term and the term ABC. Students, very easy question. Sum of p term is equal to a के equal. तो p by 2 सम ऑफ p टर्म का फॉर्मूला p by 2 ब्रैकेट 2a प्लस p minus 1 into d is equal to a. यहाँ पर a स्मॉल a है, कंफ्यूज होने के लिए, कंफ्यूजिंग से बचने के लिए मैंने यहाँ पर बड़ा a लिख दिया बेटा 2a. d को भी मैं बड़ा मान लेता हूँ 2a plus p minus 1 into d. Now student 2a plus p minus 1 into d by 2 और इस a p को इधर ले जाता हूं a by p. ये इक्वेशन फर्स्ट. नाउ सम ऑफ q टर्म इज इक्वल टू b के इक्वल है, तो q by 2 2a plus q minus 1 into d इज इक्वल टू b के इक्वल. सेम ऊपर वाला स्टेप 2a plus q minus 1 into d divided by 2 is equal to b by q. ये मेरी सेकंड इक्वेशन. नाउ similarly we can write SR is equal to C, then 2a plus r minus 1 d divided by 2 is equal to C by r. It is third. Now you have proved that this is equal to 0. Now स्टेट बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी. a by p ब्रैकेट q minus r plus b by q ब्रैकेट r minus p प्लस
C by R ब्रैकेट P माइनस Q, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये 0 के इक्वल है। तो A by P फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू ऑफ A by P पुट हियर व्हाट 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D डिवाइड बाई 2 A by P की जगह ऐसे ब्रैकेट क्लोज करके Q माइनस R B by Q this one Q minus 1D divided by 2 and R minus P plus 2A plus R minus 1 into D divided by 2 or P minus Q. Replace these values from these equations. Now स्टूडेंट को इधर ध्यान देंगे 2 सब में है 1/2 पहले एक बार ले लेता हूं मैं 2a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2a मल्टीप्लाई q माइनस r प्लस p माइनस 1 एंड q माइनस r d प्लस 2a मल्टीप्लाई r माइनस p प्लस q माइनस 1 r माइनस p d प्लस 2a ब्रैकेट p माइनस q एंड प्लस r माइनस 1 एंड p माइनस q इंटू d। नेक्स्ट लाइन बोल इधर ध्यान देंगे सभी 2a कॉमन निकल रहा हूं 2a वाली टर्म्स कॉमन निकाल लो तो क्या बचता है आपके पास यहां पर बचेगा q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। सिमिलरली स्टूडेंट्स d कॉमन निकालता हूं d सम में से जो d वाले कंसेप्ट है उन्होंने d कॉमन निकाल लिया तो जो टर्म्स बच गई उनके मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पर ये हो जाएगा बेटे pq माइनस pr माइनस q प्लस r। ध्यान से देखना पहले इस p की q के साथ pq p की r के साथ pr q 1 की q के साथ q 1 की r के साथ प्लस r। कोई दिक्कत है समझ में आ गई बेटा। उसी प्रकार से प्लस अब ये वाला भी इनकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगी क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस क्यू। इसी प्रकार से इनकी मल्टीप्लाई पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। नेक्स्ट लाइन 1/2 2a। ध्यान से देखना बेटे ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया आर से आर पी से पी क्या बच गया 0। यहां पर भी पी क्यू 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 आर सारे कैंसिल हो जाएंगे सभी कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 0 और 0 है किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 और ऐड करेंगे जब भी 0 तो हाफ की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन थोड़ी सिंपलीफिकेशन थोड़ा है टिपिकल लेकिन इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आप कर नहीं ना पाओ। थोड़ा कॉन्शियस होकर करोगे आप ध्यान देंगे करोगे मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई में मिस्टेक्स नहीं होंगी। क्लियर दो ब्रैकेट्स को इधर ऊपर करना था और कोई नई बात नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स यहां तक के क्वेश्चंस आपने आज अपने फेयर नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। एग्जांपल्स भी कर रहे हैं लिसन केयरफुली एग्जांपल्स भी अपने फेयर नोटबुक में जरूर करने हैं सभी। ठीक है स्टूडेंट्स थैंक यू।